Hello 5th class students. Today is your English class and in our previous classes I have taken the revision of 36 questions from your question bank of half yearly exams. हमारी हाफ ईयरली एग्जाम्स का जो क्वेश्चन बैंक है आपका उसके 36 क्वेश्चन का मैं रिवीजन हमारी पिछली क्लासेस में ले चुकी हूँ. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू दिस रिवीजन एंड नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 37 कलेक्टिव नाउन्स. जो नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें कलेक्टिव नाउन्स को शो करना है. नाउ द कलेक्टिव नाउन्स मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर नाउन. यानी कुछ ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो पूरे पर्टिकुलर किसी नाउन के पूरे ग्रुप को शो करते हैं वह कलेक्टिव नाउन्स कहलाती हैं. रीड दिस एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. अ बैंड ऑफ सोल्जर, अ गैंग ऑफ थीव्स. बैंड ऑफ सोल्जर्स यानी सोल्जर्स का पूरा ग्रुप जिसके लिए बैंड ऑफ सोल्जर वर्ड यूज किया जाएगा. अ गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स की पूरी गैंग. अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, अ टावर ऑफ जिराफ, a row of houses, a circle of friends, a group of people, a herd of cattle, a bunch of geese, a range of mountains, a crew of sailors, a mass of people, a pride of lions, a grove of trees, a packet of letters, a crowd of people, band of musicians, a fleet of ships, a string of pearls, and a pair of shoes. Now question number 38, idioms means write the meaning of these idioms. We have some idioms and you all have to write the meaning of these idioms. इन idioms की meaning आपको लिखना है. idioms का मतलब होता है ऐसे phrases जो commonly किसी बात के लिए बोले जाते हैं लेकिन literally उनका कोई meaning नहीं होता है. Now the idioms are eat a horse means very hungry. जब हमें बहुत भूख लगती है या बहुत ज़्यादा hungry होते हैं then we can say eat a horse. Piece of cake means very easy. Round of clock means 24 hours a day. A brainwave means a clever idea. A black mood means bad mood, angry. Grey matter means brain. Up in arms, angry about something. Point finger at means to blame someone. Now the next question number 39 is synonyms and antonyms. What are synonyms? Synonym means different words that mean the same are known as synonyms. Synonyms का मतलब होता है ऐसे अलग अलग वर्ड जिनका मीनिंग सेम एक जैसा होता है. Now what are antonyms? Antonyms are words with opposite meaning. Antonyms ऐसे words होते हैं जिनका मीनिंग opposite यानी उल्टा होता है. Now we have words, synonyms and antonyms. Happy, joyful, cheerful, and antonym is unhappy, able, fit, capable, unable, just, impartial, fair, unjust, fit, able, suitable, unfit, honest, truthful, candid, dishonest, like, love, regard, dislike, advantage, benefit, gain, disadvantage, pleasure, happiness, joy, delight, displeasure, correct, right, accurate, incorrect, direct, straight, non-stop, indirect, discipline, punish, organize, indiscipline, legal, lawful, permissible, illegal, literate, educate, learned, uneducate, illiterate, possible, believable, likely, impossible, patient, enduring, tolerant, impatient, polite, well-mannered, courteous and impolite, moral, ethical, principled, immoral, regular, even, steady, irregular, responsible, accountable, trustworthy and irresponsible, violent, fierce, savage and non-violent, payment, amount, salary, non-payment. Now in this column you have the synonyms of these words and in this column we have the antonyms of these words.
Now the next and last question number 40 is rewrite the following sentences with correct punctuation. इन sentences को आपको correct punctuation के साथ फिर से लिखना है. Now in our punctuation topic we had read about the inverted commas. हमारी punctuation वाले topic जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने उसमें आपको inverted commas के बारे में पढ़ाया था. Now let's revise the rules of inverted commas. इन्वर्टेड कॉमा किस तरह से लगाया जाता है, हम एक बार उसके सारे रूल्स रिवाइज करेंगे. यूज इन्वर्टेड कॉमास टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ डायलॉग और कोटेशन. इन्वर्टेड कॉमा हमेशा किसी डायलॉग या कोटेशन के बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में और उसके लास्ट में यानी एंड में लगाया जाता है. ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन द कोटेशन. इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद जो फर्स्ट वर्ड होता है वह हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है. बट डू नॉट यूज कैपिटल लेटर व्हेन द कोटेटेड टेक्स्ट इज इन पार्ट्स. जब कोटेटेड टेक्स्ट यानी जो वर्ड्स कोटेशन मार्क के अंदर लिखे जा रहे हैं अगर वे पार्ट्स में डिवाइड हो तब हम उसमें कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट, फुल स्टॉप ऑलवेज गो इनसाइड कोटेशन मार्क्स. यानी फुल स्टॉप जो होता है वह हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर जाता है. द प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन मार्क विथ कोटेशन मार्क फॉलोज लॉजिक. कोटेशन मार्क के अंदर क्वेश्चन मार्क का यूज करने में कुछ लॉजिक्स को हमें फॉलो करना पड़ता है. एंड द फर्स्ट लॉजिक इज इफ अ क्वेश्चन इज विद इन द कोटेशन अ क्वेश्चन मार्क शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क. यानी जो कोटेटेड वर्ड्स है या कोटेशन स्पोकन वर्ड्स है अगर वो एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगा. बट द क्वेश्चन विल यूज if the whole sentence is a question but the quotation is not, then the question mark goes outside. लेकिन जब पूरा सेंटेंस एक क्वेश्चन होता है लेकिन जो कोटेटेड वर्ड्स होते हैं स्पोकन वर्ड्स होते हैं अगर वे एक क्वेश्चन नहीं होते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगाया जाएगा. नेक्स्ट, similarly, if the exclamation is within the quotation and exclamation mark should be placed inside the quotation mark. Exclamation mark के लिए भी हम सेम थिंग मीन्स क्वेश्चन मार्क जैसा रूल फॉलो करेंगे. अगर कोटेटेड वर्ड्स यानी स्पोकन वर्ड्स अगर एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर लगाया जाएगा. बट इफ द होल सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेशन बट द कोटेशन मीन्स स्पोकन वर्ड्स इज नॉट, देन द एक्सक्लेमेशन मार्क गोज आउटसाइड. लेकिन जब पूरा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेशन होगा लेकिन जो स्पोकन वर्ड्स है जो किसी के द्वारा बोले गए वर्ड्स है वे अगर कोटेशन एक्सक्लेमेशन में नहीं होंगे तब हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क कोटेशन मार्क के बाहर लगाया जाएगा. इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क दोनों सेम थिंग होती है. यह हमेशा किसी भी कोटेटेड वर्ड्स यानी स्पोकन वर्ड्स जो वर्ड्स किसी के द्वारा बोले गए हों और जब हम उन्हें एज इट इज रिपीट करते हैं या एज इट इज उन्हें लिखते हैं तब हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं. कोटेशन मार्क स्पोकन वर्ड्स के पहले स्टार्टिंग में और लास्ट में लगाए जाते हैं. Now the sentences are, there is a squirrel on the roof, said Ellie. Ellie ने कहा कि स्क्वेरल छत के ऊपर है. Maya is trying hard in school this semester, her father said. माया इस बार अपने स्कूल के लिए बहुत मेहनत कर रही है उसके फादर ने ऐसा कहा. She asked, do you read newspaper daily? उसने पूछा क्या तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो. Hurray said Richa. रिचा ने कहा हुर्रे. The food is tasty said the customers. Customers ने कहा कि खाना बहुत टेस्टी है. I heard someone call help. मैंने सुना कि किसी ने हेल्प के लिए बुलाया. Are you hungry? The lady asked kindly. लेडी ने महिला ने काइंडली यानी दयालुता से पूछा क्या तुम भूखे हो. Are there enough pencils for everyone? Joe asked. जॉय ने पूछा कि क्या सभी के लिए हर एक के लिए पेंसिल्स पर्याप्त मात्रा में है. नाउ यू ऑल हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एंड वी हैव कंप्लीटेड
all 40 questions revision and this 40 questions are from your question bank of half yearly exams। ये जो 40 questions का रिवीजन मैंने आपका लिया है, ये सारा रिवीजन आपका हाफ ईयरली एग्जाम का जो क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर से आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उन्हें लर्न करना है। ओके, थैंक यू।